पीआर आपके हाथ में आ गई, तो वो कैसी फीलिंग थी? इट वाज अनबिलीवेबल। आई वाज काइंड ऑफ इन टीयर्स, लॉट ऑफ टीयर्स। एंड हो गया था कि भी सही में मेरा आ गया ना। मैं बस मेरा रिजल्ट देख के सही में पूछ रही कि मेरा मेरा ड्रॉ सही में मेरा ही है। मैं नाम पढ़ रही हूँ उस पे अपना, लाइक बिलीव ही नहीं होता है ना, कि नेवर एक्सपेक्टेड कि इतना हो जाएगा। बस सुनो, मुझे बहुत लोग ने बोला है क्या कर लोगे फ्रेंच करके, क्या हो जाएगा, मत करो इतना, ये मत करो वगैरह, है ना। तो मैंने बोला मेरे को करना है, काइंड ऑफ मैंने डिसाइड किया है, आई विल ट्राई। मैंने जब ये सुनी ना आपकी न्यूज़, तो मुझे पता है क्या लगा कि 5-1-1 आपका स्कोर है और 5-1-1 का ही ड्रॉ है। एक रब दी कृपया, राइट? Bonjour Khushbu, comment allez-vous? Bonjour Arman, je vais bien, et vous? Oui, je vais bien, merci. Félicitations pour avoir réussi l'examen TCF avec de bonnes notes. Comment se passe ton apprentissage du français avec Harman? Merci beaucoup. Je commencé les cours cours de français avec des mots. Et mon expérience a été très, très, très positive et le professeur explique très bien. Et donc, je recommande cette classe à tous. Okay, merci beaucoup. So first of all, congratulations, right? Let's make this video in Hindi, English, and Punjabi so that everyone can understand, right? And first of Yes. all, congratulations, you got your Canadian PR, right? And I am confirming your score. Okay, today comprehension oral listening the which 521 score out of 699, which is C1 level, right? Comprehensive खरीद ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ C2 level, like 646 score, and expression oral 9 marks ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ B1 level ਹੈ। expression ਖਰੀਦ 9 marks ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ B1 level ਹੈ, right? It's Khushbu, Yes. so that it's your result, right? Yes. That's Okay, perfect. fine. Yes. All right, let's continue now. So ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਕੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਆਰ ਕਿਵੇਂ मिली? Yes, so actually जब मैंने French exam दिया, so it helped me हम्म। increase my score, and my score was exact 511 at that point. हम्म। And जैसे ही draw आया, 511 का draw आया, हम्म। and yeah, that helped me to get the perfect score and my invitation. So yeah, I would say it was a perfect timing. वेरी नाइस। लाइक आप कह रहे हो कि आपके 500 स्कोर ऑलरेडी बने हुए थे और फ्रेंच के Yes, साथ आपको 11 स्कोर मिले, राइट? एंड उसके बाद इमीडिएटली जब ड्रॉ हो गया 551 511 पे, और देन आपकी जो फाइल है वो पिक होगी, इनवाइट आ गया। yes, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो फ्रेंच से आपने सीएलबी पूरा अचीव नहीं करा, बट स्टिल आपको कनाडा की पीआर मिली। दैट्स रियली नाइस। yeah. इट्स एन I mean, ह्यूज it was अचीवमेंट, राइट? very hard to get the PR with the French and everything. So yeah. वेरी नाइस। ओके, तो ये जो फ्रेंच की आपकी जर्नी थी वो कब स्टार्ट हुई थी? I started in August this year only. ठीक So है। 2025, I would say. Yeah, August में ओके। start किया था. So I decided that I not want to give 4 months. कि मुझे हम्म। 4 months में clear करना था. ठीक है। And yeah, so जब मैंने हरमन का क्लास आपके देख के डेमो ज्वाइन हम्म। किया, and I realized that हम्म। it's perfect for me because I wanted a थोड़ा बहुत freedom चाहिए था timing के according. I हम्म। didn't want a restricted timing, so there was like a morning class and evening class. So yeah, हम्म। then I started and yeah. ओके, सो बेसिकली व्हेन यू स्टार्टेड, राइट, तो आपने टारगेट बनाया था कि 4-5 महीने में हमने क्लियर करना है, बट आपको Yes. 6 मंथ्स हो गए अभी। अभी आपने Uh, 5-6 मंथ्स या लगा हुआ ऑलमोस्ट है। बिकॉज़ आई या दिसंबर में मेरा एक तो पहले आ ही गया था, मैंने एग्ज़ाम दे दिया था, तो ऑलमोस्ट आई हम्म। वुड से 4 एंड हाफ मंथ्स टू इट टूक अराउंड दैट या। ओके, वेरी नाइस। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑफ कोर्स, हाउ इज योर एक्सपीरियंस ऑफ लर्निंग फ्रेंच विद हरमन? या इट वाज़ अमेजिंग, इट वाज़ रियली ग्रेट। आई मीन आई वुड से कि स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स आई वाज़ रियली ओवरवेल्म्ड कि नए क्लास जॉइन कर रही हूँ, फ्रेंच कर रही हूँ, फ्रेंच इज़ डिफिकल्ट लैंग्वेज, आई वुड डेफिनिटली से दैट। बट उसको टाइम देना, जैसे आपके डेमो में आपने बोला था कि some people just provide 2 day class, they attend 2 days class, and that's not enough. You need at least a week or 5 days a week to learn French. And that's why I felt that that is perfect, and I followed that. Honestly, I joined class every day. और सारे प्रोफेसर्स बहुत अच्छे थे, फ्रॉम A1 लेवल टू like TEF or TCF level preparation. It was perfect and it was really great. So yeah, it was really amazing for me. ओके, फाइन। ऑलराइट, सो जब आपने फ्रेंच की क्लासेस लगाई, राइट, हमारे साथ, देन जो Mhm. आपका स्केड्यूल था वो इजीली मैनेज होता रहा, मॉर्निंग इवनिंग? यस, क्योंकि बहुत बार होता है कि तुम मॉर्निंग में अवेलेबल नहीं, सो फॉर मी इवनिंग क्लास वाज रियली परफेक्ट, एंड मेनी स्टूडेंट्स वर देयर कि जिनके लिए बहुत इजी हो जाता है।
हम्म। एंड ऑनेस्टली जब एग्जाम का लास्ट मंथ था, आई वाज ट्राइंग कि मैं मॉर्निंग इवनिंग थोड़ा सा ज्वाइन करूँ कभी कभी। अगर टीचर्स बोलते हैं कि इफ यू वांट टू हम्म। प्रैक्टिस लाइक स्पीकिंग ट्वाइस, हम्म। यू कैन डू इट। हम्म। सो दैट हेल्प्स अ लॉट कि आप जितना टाइम चाहते हो आप दे सकते हो उसको एवरी डे, एंड यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट। दैट्स सो ऑलराइट। या। ओके, सो जब आपने फ्रेंच की क्लासेस राइट हमारे साथ ली, तो आपने सेल्फ पेस प्लस लाइव सेशंस फॉलो करे राइट? लाइव सेशंस यस। आपके डेली होते थे? यस, लाइव सेशंस में आई वाज लाइक या अटेंडिंग मोस्टली एवरी डे। एवरीडे राइट? ओके, 6 डेज इन अ वीक आपने डेली लाइव सेशन जब लगाए राइट? और आपको इंडियन ट्रेनर आए थे सारे, और या नेटिव भी थे? नेटिव भी थे कुछ, या। ओके, ठीक है, लाइक हायर लेवल्स पे नेटिव थे। ओके, सो व्हाट एडवाइस यू वांट टू गिव टू द स्टूडेंट्स हु वांट्स टू लर्न फ्रेंच? जो अभी फ्रेंच कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जो कह रहे हैं कि हमारा वर्क परमिट खत्म हो रहा है, या हमारी पीआर कनाडा की हमारे डालनी है हमने फ्रेंच के साथ, आप उनको क्या एडवाइस करते हैं? यस। आई वुड से अगर अभी से स्टार्ट नहीं किया तो जस्ट स्टार्ट राइट अवे। एंड हम्म। इफ यू आर नॉट गिविंग इनफ टाइम, आई वुड से सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि आप इनफ टाइम दो। इवन इफ यू आर वर्किंग और नॉट वर्किंग, आई वुड से बिकॉज इफ मेरे को क्लियर करना था 4 महीने में, सो आई हम्म। ट्राई टू study like 10 to 12 hours a day. It ओके। was like go whole day, and then my mind picked up all the things कि नहीं चलो ठीक है, अब फ्रेंच आ रहा है समझ में। So students who are maybe trying to increase their score, of course, you don't need to perfect your French, but at least try to clear your exam with everyday preparation. There are a lot of materials available. Plus, ये classes में बहुत help होती है. And then you can ask other students as well कि कौन कैसे preparation कर रहा है. And I kind of followed my schedule whole day. So I would say make your goal, make your like daily plan. मेरा daily plan होता था कि I wanted to स्टडी लेट्स से 3 आवर मेरे को रीडिंग करना है। मेरा वीक पॉइंट अगर स्पीकिंग था, सो आई वाज लाइक नो, आई नीड 4 आवर्स अ डे फॉर स्पीकिंग। सो या ऑलवेज मेक अ स्केड्यूल एंड जस्ट ट्राई टू फॉलो इट। ओके, तो क्या रोड मैप था आपका लाइक स्टार्ट से? जैसे फॉर एग्जांपल आपने जब फ्रेंच स्टार्ट करी राइट, तो A1 लेवल से आप TCF के C2 लेवल तक आप कैसे पहुंचे? स्टार्टिंग में आई वुड से कि मैंने ऑफ कोर्स जो आपके रिकॉर्डेड क्लास का पोर्टल पे थे तो हम्म। सारे उसको देख के आई ट्राइड टू फिनिश देम इन लाइक 1.5 मंथ में। मैंने सारे वीडियोस कंप्लीट किए, सो माय ग्रामर वाज क्लियर कि चलो ये है। आई वुड से मैंने 4 नोटबुक्स फिल किए हैं विद द नोट्स। विद ईच ओके। वीडियो आई टुक द नोट्स। आई लाइक मैं उसको वापस पढ़ती थी एवरी डे टू रिवाइज एंड एवरीथिंग। एंड हम्म। देन वंस आई वेंट टू द B1 B2, मैंने स्टार्ट कर लिया कि अगर कोई फ्रेंच नेटिव मिलता है, ऑनलाइन मिलता है, या मेरे फ्रेंड जो भी कोई और भी सीख रहे थे, आई स्टार्टेड स्पीकिंग विद देम डेली में। तो मेरे को और वेरी प्रैक्टिस हो नाइस। गई कि हम्म। या दैट हेल्प्स अ लॉट ऑनेस्टली। इफ यू फाइंड एनीवन, जस्ट ट्राई टू कांटेक्ट। मैं चैट भी करती थी व्हाट्सएप, इवन इफ आई डोंट नो, आई एम लाइक लेट्स ट्राई, है ना? तो वो ओके। हेल्प करता है। एंड देन ऑफ कोर्स रीडिंग के लिए, लिसनिंग के लिए लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोस और एक हम्म। थोड़े से बुक्स एंड आर्टिकल्स, वो सब भी काफी पढ़े हैं मैंने। तो हम्म। इवेंचुअली आई वुड से कि टाइम बाय टाइम जब तुम खुद से पढ़ते हो, तुम्हें पता आता है कि तुम्हारी पेस कैसा है, स्पीड कैसा है, एंड हाउ यू वांट टू गो अबाउट इट। हम्म। सो या देर आर, और आप यहाँ पे टीचर्स ने भी, प्रोफेसर्स ने सारे सोर्सेज अवेलेबल हमें प्रोवाइड किए थे, दे वर रियली हेल्पफुल। तो आई वुड से या दैट्स अ ग्रेट काइंड ऑफ अ जर्नी कि यू कैन जस्ट फॉलो इट। या। वेरी नाइस। ओके, सो आपका जो सबसे स्ट्रॉन्ग मॉड्यूल है राइट, जिसे कॉम्प्रहेंसिव खरीद, रीडिंग, रीडिंग एक बहुत बड़ा टास्क है आई वुड से। आपने इसमें C2 लेवल लिया है जो कि 646 मंथ है, इट्स अ नेटिव लेवल, ट्रस्ट मी। मतलब मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि आपने अगस्त में क्लासेस स्टार्ट करी हैं और अभी का जो मंथ है वो जनवरी चल रहा है, और आप कह रहे हो कि आपने 4-5 महीने में हमारे साथ क्लासेस करके अपने रीडिंग में C2 ले लिया, तो उसके पीछे क्या स्ट्रेटजीज थी आपकी? ऑनेस्टली ग्रामर कॉन्सेप्ट क्लियर होना सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि सबको बहुत जल्दी करना है, बट दे डोंट फोकस ऑन ग्रामर एंड अदर वर्ड्स। सो आई वुड से कि मैंने पहले पूरा फोकस मेरा ग्रामर पे था। मैं एवरीडे चैट जीपीटी से भी अगर बोलो, मैं टेस्ट खुद से भी बनाती थी। क्लास में तो मिलते थे, मैं खुद से टेस्ट बनाती थी वेरी नाइस। एवरीडे, चाहे 15 मिनट्स है, 20 मिनट्स है। आई जस्ट ट्राई टू ट्रांसलेट द स्टेटमेंट्स और थोड़ा हम्म। बहुत कि वर्ड से एटलीस्ट मुझे कैटेगरी वाइज मैंने वर्ड लिस्ट बना दिया था। सो उससे मेरी रीडिंग में काफ़ी हेल्प हुआ। एंड देन एज आई सेड कि मैंने स्टोरीज वेबसाइट पे आर्टिकल, न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह होते थे, बिकॉज इन स्टार्टिंग आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर टेफ। सो हम्म। देर वॉज अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट फॉर टेफ रीडिंग। सो मैंने पहले उसके लिए किया था।
देन आई टर्न टू टीसीएफ एंड आई वाज लाइक कि नहीं, टीसीएफ मेरे को अच्छा लग रहा है, तो हम्म मैंने उस पे स्विच किया। बट रीडिंग मेथड इवेंचुअली विच एवर एग्जाम यू गिव, काइंड ऑफ मेथड तो सेम ही रहेगा कि रीडिंग करें। एंड हम्म आई थिंक बस मैंने बहुत डे टू डे रीड किया, सो काइंड ऑफ इट इट वाज रियली इजी फॉर मी कि रीडिंग तो मेरे लिए बहुत इजी हो गया कि मेरे को समझ सारा आ रहा है। ओके। तो या बट खुशबू ऐसे है ना, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ऐसे आती है कि जो रीडिंग होती है ना वो एमसीक्यूज है, राइट? जैसे मान लो 39 क्वेश्चन है टीसीएफ के। स्टूडेंट्स कहते हम्म हैं कि जब हम पढ़ने बैठते हैं वो कभी किसी का डी होता है, लग रहा होता है सी है, राइट? तो वो गलत हो जाते हैं ऐसे हम्म एग्जाम्स में। तो उसमें आपने कैसे मैनेज करा? और वैसे भी जो लास्ट वाले होते हैं जो 15-20 है, वो तो बहुत ही पूरी पूरे एग्जाम की वेटेज ही वही देते हैं, तो वही स्टूडेंट्स के गलत होते हैं तो मोस्टली। तो वो आप कैसे करते हो? और वो भी टास्क ये 1 घंटे में कंप्लीट करना है, सबसे बड़ा टास्क है रीडिंग का, तो यस। उसको कैसे मैनेज करा आपने? मैंने ऑनेस्टली आई वुड से कि मैंने ना टाइमिंग फोकस मेरा लास्ट क्वेश्चन की तरफ भी था। आफ्टर 20 लाइक 20 to 40 क्वेश्चन के बीच बीच में मैंने पूरा फोकस किया था। आई प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ देम बिकॉज आगे के मुझे पता थे कि वट एवर क्वेश्चन कम इन देयर दे वर इजी फॉर मी। मैंने काफी सारे ऑनलाइन जैसे वेबसाइट्स हैं उन पे ट्राई किया, उन पे ऑनलाइन अवेलेबल टेस्ट थे, हम्म मैंने ट्राई किया ना, अंडरस्टूड कि व्हाट आई नीड टू डू इज कि हम्म फर्स्ट अगर 15-20 मिनट्स में, ट्रस्ट मी, आई फिनिश्ड ऑल लाइक 20 क्वेश्चन स्टार्टिंग वाले। सो आई हैव लॉट ऑफ टाइम फॉर द रिमेनिंग क्वेश्चंस। रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो हाँ, वो स्ट्रेटेजी हेल्पफुल होती है क्योंकि आगे वाले एक एक लाइन के तुम्हारे लिए बहुत इजी होगा। इजी है। और अगर तुम मिस भी करते हो, वो मिस भी कर लो, उसको छोड़ दो, हम्म। पहले पीछे वाले करो, क्योंकि उसके वेटेज अगर तुमने क्लियर कर लिया तो ज्यादा एनी है। हाउ यू विल पास द एग्जाम, है ना। तो हम्म। इसलिए मैंने पहले लास्ट वाले क्वेश्चंस पे फोकस किया, और दैट हेल्प मी लॉट टू अंडरस्टैंड कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एंड आंसर अगर कंफ्यूजन होता है, जब तुम बार बार रिवाइज करोगे ना डिफरेंट टाइप के टेस्ट, तो यू विल अंडरस्टैंड कि नहीं, गलती कहाँ कर रहे हो। आई यूज टू ट्रांसलेट, लेट्स से मैंने कोई ऑनलाइन टेस्ट लिया, आई यूज टू ट्रांसलेट इन चैट जीपीटी और गूगल वट एवर, एंड देन इफ आई डोंट अंडरस्टैंड द आंसर, आई ऑलवेज आस्क देम कि भाई, या तो टीचर को भी बहुत बार बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, आई थॉट ऑप्शन वाज बी वाज राइट, देन दे ऑलवेज एक्सप्लेन मी कि वाई सी इज राइट, या लॉजिक क्या होता है। कुछ हम्म स्टेटमेंट में ग्रामर, बहुत छोटे छोटे स्टेटमेंट होते हैं विच यू डोंट अंडरस्टैंड प्रॉपरली। तो एट द एंड प्रैक्टिस है। हम्म। जितना मटेरियल सॉल्व करोगे, आई थिंक दैट हेल्प मी अलॉट। मैंने बहुत मटेरियल सॉल्व किया है, एंड जितने नोट्स बनाओगे दोज आर उतना बेनिफिट हेल्पफुल। है। ओके, तो नोट्स जैसे सबके बाद वो बनाते नहीं है, मैंने बहुत देखा है क्लास में आते स्टूडेंट्स ने, टीचर नहीं बी वन बना। बी टू क्लास में teacher ने पूछा कि नोट्स बनाए, आपको नोट्स दिखाना है, एंड दे पीपल वर लाइक नो, हमने तो नहीं बनाए। तो आई वुड बी लाइक, तुम रिवाइज कैसे करते हो, राइट? इतना सारा इन्फॉर्मेशन तुम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, वो हमें लिखना ही पड़ेगा और नेक्स्ट डे रिवाइज करना पड़ेगा, वो एग्जैक्टली सेम। यस। ट्रू ट्रू ट्रू। ओके, तो रीडिंग के लिए हमने डिस्कस करा, तो रीडिंग आपने पीछे से स्टार्ट करी थी कि आगे से? आगे से ही करी थी, बट आई प्रॉपर टाइम की 15 मिनट्स में बस आगे वाले करके आगे बढ़ना है, दैट्स इट। आगे वाले लाइक 15 मिनट्स में आपने 20 क्वेश्चन सॉल्व करे, हाँ, और जो रेस्ट 20 थे उसके ऊपर आपने बाकी सारा टाइम लगा दिया। अमेजिंग। ताकि उनको मैं दोबारा रीरीड कर सकती हूँ कि मेरे पास टाइम इनफ रह गया था। मैंने राइट। अगर 1 आवर का टाइम है, 40 मिनट्स में मैंने सारा टेस्ट अगर कर लिया, तो बाकी 20 मिनट्स में बस रिवाइज कर थी कि मैंने सही आंसर सिलेक्ट किया है कि नहीं। आई वेरी जस्ट नाइस। बार बार तुम रीचेक कर सकते हो, तो यार। C2 लेवल, तभी आप तभी है यार, राइट? वेरी नाइस। यस। ओके। देयर आर सो मेनी फ्रेंच इंस्टीट्यूट्स, राइट खुशबू? तो व्हाई डिड यू चूज फ्रेंच विद हरमन? ऑनेस्टली मैंने सबके डेमो लिए थे, सारे क्लासेस, बहुत सारे क्लासेस पे लिए थे। एंड मैं, जो मेरा एक स्टडी मेथड है, मुझे किसी से मैं कन्विंस नहीं हो रही थी। बट जब आपका डेमो मैंने देखा था, आई वाज कन्विंस कि चलो 5 डेज की ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है, ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है, मैं उस पे से अपनी पेज पे रीड कर सकती हूँ, अपने पेज पे लर्न कर सकती हूँ। देन देयर वर नेटिव स्पीकर्स एंड एवरीवन, दे वर अवेलेबल टू हेल्प एज वेल। तो वो मेरे लिए सबसे प्लस पॉइंट था कि बाय ईच स्टेज, A1 A2 B1 B2, हर स्टेज पे अलग अलग टीचर्स थे, अलग अलग गाइडेंस थी। एंड इट मैच माय मेथड काइंड ऑफ कि भाई हाँ, डेली होना चाहिए। डेली होमवर्क टाइप भी समझ लो कि तुम करके आ रहे हो, तुम रीचेक के लिए भेज रहे हो टीचर्स को। तो दैट वाज द प्लस पॉइंट फॉर मी कि भाई मैंने नहीं, मेरे को यही क्लास करना है। ओके ओके फाइन। ऑलराइट, सो व्हाट अबाउट द लिसनिंग मॉड्यूल? आपके लिसनिंग में कॉम्प्रिहेंसिव राल में 521 स्कोर है, जो कि C1 लेवल बनता है, राइट? और आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फ्रेंच स्टार्ट करते हैं, उनको लिसनिंग बहुत मुश्किल लगती है फ्रेंच की, वो क्विट कर देते हैं, कहते हैं बहुत मुश्किल है। तो आपने कैसे मैनेज करा और इतना अच्छा स्कोर कैसे लिया? टेस्टिंग में भी सेम था। मैंने यूट्यूब पे से काफी, मैंने बोला ना, स्टोरीज से स्टार्ट किया था। स्टोरीज से मैंने एक प्रॉपर आर्टिकल, न्यूज को सुनना शुरू किया, एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं यूजुअली समरी लिखती थी कि अगर मैंने सुना स्टोरी,
हम्म। देन आई यूज्ड टू राइट अ समरी कि मैंने क्या-क्या सुना वेरी एंड देन आई नाइस। यूज्ड टू ट्रांसलेट इट कि हम्म। ट्रांसलेशन क्या है, डिड आई गेट दैट राइट और नॉट। और अगर कुछ वर्ड्स नए हैं थे तो सेम आई लाइक मेरा पूरा एक नोटबुक तो वोकैब का ही था कि जो वोकैब लिस्टिंग में यूजुअली आते हैं, तो उनका मैंने पूरा एक अलग लिस्ट बनाया था, तो दैट हेल्प मी अ लॉट। और बाकी तो डे टू डे में मैंने शोज भी स्टार्ट कर लिए थे देखना थोड़ा बहुत फ्रेंच, हम्म। ताकि एटलीस्ट लिसनिंग में यू गेट यूज टू इट कि जितना तुम सुनोगे डे टू डे में यू विल गेट यूज टू इट। सो सेम स्ट्रेटेजी मैंने बस एग्जाम में अप्लाई किया। आई जस्ट फोकस्ड ऑन द वर्ड्स, कीवर्ड्स, क्या बोल रहे हैं, एंड या इट हेल्प्स। वेरी नाइस। तो बेसिकली आपने लिसनिंग स्टार्टिंग से कर दी थी, राइट? और आपने जो न्यूज़ है और आर्टिकल्स है वो सारे मतलब आपने अच्छे से पढ़ने और सुनने समझने कर दिए, राइट? वेरी नाइस। ओके। तो पॉडकास्ट भी आपने सुने थे स्टार्टिंग से? यस, आई डिड पॉडकास्ट टेक्नोलॉजी पे या सर्टेन टॉपिक होते हैं, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, और हम्म। वो उसी पे ही ज्यादातर आते हैं काइंड ऑफ एग्जाम में हम्म। भी। तो जितना वो सुनोगे आपको सिमिलर लगेगा कि हाँ भाई ये टॉपिक तो सुना हुआ है, ऐसा डेफिनेटली। लगेगा। या ओके। तो आपने बेसिकली इसमें ऐसे इम्प्रूव करा, लाइक आप डेली सुनते थे कितने कितने टाइम? क्या रूटीन क्या थी आपकी पूरी? रूटीन में आई वुड से कि मैं ज्यादातर रीडिंग और राइटिंग में आई यूज टू गिव 2 2 आवर्स। और रीडिंग और लिसनिंग, राइटिंग में 2 2 आवर्स, ठीक है। यस। हम्म। और फिर स्पीकिंग में आई यूज टू गिव 3 आवर्स, 3 to 4 आवर्स अराउंड, ठीक क्योंकि है। मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए थी उसमें। हम्म। और लिसनिंग में भी अराउंड आई वुड से कि 2 आवर्स तो फिक्स थे कि 2 to 3 आवर्स मुझे सुनने हैं, क्योंकि अगर एक पॉडकास्ट भी देखती हूँ इट्स अराउंड 1 आवर और लाइक 40 मिनट्स। 40 तो मिनट उसको तुम ट्रांसलेट कर रहे हो, समझ रहे हो कि क्लाइंट में बाद में समझती थी ट्रांसलेट करके क्या है। तो या 2 आवर्स फॉर तो दैट एज डेली के वेल। आप कह रहे हो 2 आवर्स आप लिसनिंग पे लगाते थे, ठीक है, और 2 आवर्स आप रीडिंग पे, मतलब आप डेली के 8 घंटे देते थे फ्रेंच को अप्रोक्सीमेटली? अ, 8 तो मैं अपने पर्सनल देती थी, देन देयर वर क्लासेस। तो 3 आवर्स ऑफ क्लासेस में अटेंड करती थी कि अगर सोचो रीडिंग का क्लास है या स्पीकिंग का अलग था 1 आवर, राइटिंग का 1 आवर था। सो दैट्स हाउ आई मैनेज लाइक 11 to 12 आवर्स की मुझे पता है अगर 3 आवर्स के मैं क्लासेस अटेंड कर रही हूँ, 8 आवर्स आप फॉर माई सेल्फ कि मुझे खुद से सेल्फ स्टडी करना है। 11 12 घंटे आप फ्रेंच को रोज देके देन यस, आपका स्कोर आया, राइट? 4 5 6 महीने में। यस। वेरी नाइस। मतलब अगर कोई बंदा हफ्ते में 2 दिन क्लास लगाए तो मुझे तो लगता है कि आपका ऐसे स्कोर तो नहीं आ पाएगा। वेरी हफ्ते में डिफिकल्ट। 2 दिन से आई वुड से इट इज नॉट पॉसिबल दैट मच, मतलब टाइम लग जाएगा आई वुड से। हम्म। बाकी तो खुद की सबकी कैपेसिटी डिफरेंट क्योंकि डेफिनेटली होती है, बट यू नीड मोर डेफिनेटली। डेज। यस इट्स यस। अ न्यू लैंग्वेज तो है ना, तो यू 6 डेज। कांट। हाँ। या ओके, व्हाट आई बिलीव कि जो इंडिया में भी हम स्कूल में पढ़ते थे, राइट, बचपन में, वो भी 6 डेज था, राइट? तो 6 डेज वाला कंसेप्ट हमेशा सही रहता है, बट फॉरेन जब हम यस। देखते हैं यहाँ पे कनाडा में या इवन बाकी देशों में भी जो क्लासेस का कल्चर है वो 2 दिन का ही है बस। हाँ, तो आई थिंक वो ठीक है, नॉर्मल कोई सब्जेक्ट है कि तो अगर इंग्लिश है जैसे मैथ है हम्म। तो दैट्स ओके, क्योंकि तुम्हें कॉन्सेप्ट अगर बचपन से सीखते आ रहे हो देन यू आर हम्म। यूज्ड टू इट। पर फ्रेंच तो बचपन से नहीं सीखते आ रहे, राइट? दैट्स इट्स ट्रू। अ कंप्लीटली न्यू लैंग्वेज। अगर क्योंकि अगर सोचो हम आईएलटीएस या सेल्फी भी देते हैं, इंग्लिश के लिए भी हम कितना रीडिंग करते हैं, उसके लिए भी पढ़ते हैं कि एग्जाम के लिए पढ़ाई करना, वैसे नहीं मुंह काफी उठा के चल काफी। गए। क्योंकि वेरी। एक एग्जाम स्ट्रक्चर इज अ डिफरेंट थिंग है ना, कंप्लीटली। नॉर्मल फ्रेंच सीखना और एग्जाम के लिए सीखना इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो आई वुड से कि 5 डेज तो मिनिमम सबको देना चाहिए, 4 to 5 डेज, मिनिमम। अगर जल्दी अचीव करना है। इफ यू वांट टू से कि भाई मेरे को 2 साल है मैं आराम से करूंगा, तो वो अलग बात है। तो वो बंदा थोड़ा आखिरी के लास्ट के 4 मंथ जब आएगा कि अब तो सब खत्म हो गया, मेरा ऐसा ही हुआ था कि वर्क परमिट खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, देन आई वाज लाइक कि नहीं अब फ्रेंच ही है, मेरे को और टाइम वेस्ट करनी नहीं पड़ेगी। करना। वेरी यस, तो नाइस। फ्रेंच को करना ही है, तो वो हेल्प करता है। व्हाट अबाउट स्पीकिंग मॉड्यूल, लाइक आपने स्पीकिंग में कैसे इम्प्रूव करा? स्पीकिंग में ऑनेस्टली क्लासेस में सबसे ज़्यादा मेरे को हेल्पफुल रहा है, हम्म। क्योंकि हमेशा कोई, क्योंकि मैं सर्टेन लेवल तक फ्रेंड्स अवेलेबल थे जो लोग सीख रहे थे, बट सब लोग उतनी स्पीड में आगे नहीं बढ़ रहे थे। हम्म। तो मेरे को क्लास में इजी पड़ता था कि टीचर के साथ में हमेशा अगर सोचो कोई भी है, हम मोनोलॉग करते थे एवरीडे। हर टॉपिक जैसे एग्जाम में एक स्ट्रक्चर होता है, हम एवरीडे प्रैक्टिस करते थे और हमेशा हमेशा वो मिस्टेक बताते थे। तो मिस्टेक के बाद मैं खुद से ऑडियो रिकॉर्ड करती थी अपना एंड सुनती थी कि क्या मिस्टेक हो रही है, उसको नेक्स्ट क्लास के लिए इम्प्रूव कर लेती थी। एंड या आई मीन रिकॉर्ड योरसेल्फ, लिसन टू इट, चैट जीपीटी को भी भेज के बोलो कि भी गलती बता दे इसमें, वो बता देता है। तो हाँ।
या तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा, मैंने उस पे प्रैक्टिस की थी एंड ऐसे करके धीरे-धीरे इम्प्रूव किया था। वेरी नाइस। ठीक है, तो बेसिकली ये था आपकी स्पीकिंग की जर्नी। अब राइटिंग, राइटिंग में कैसे आपने अपने आप को इम्प्रूव करा? राइटिंग में सेम आई वुड से कि भाई बस मैंने इतने पेजेस भरे हैं लिख लिख के हर हाँ। टॉपिक पे, कहते हैं ना कि जितना ऑनलाइन टॉपिक अवेलेबल जो मिलता था, हम्म। बस मैं हर टॉपिक पे लिखती थी। स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स यू स्टार्ट विद बेसिक, कि डे टू डे के लिए कुछ लिखा, पहले 3 लाइन शुरू किया, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, देन आई स्टार्टेड पैराग्राफ होल, एंड देन ऑफ कोर्स कि बस ऐसे करते 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 हम्म। लेटर लिखना है या कोई कंप्लेन लिखनी है तो वो इजी हो गया बाद में। आई वुड से कि एक एक स्ट्रक्चर बना देती हूँ ना, मेरा मेथड हमेशा ये रहा है कि मैं नोट्स बना के एक स्ट्रक्चर बना देती हूँ जो मेरे लिए इजी एग्जाम में होगा। हम्म। राइटिंग में भी मैंने ऐसे सेम स्टेटमेंट बना दिए थे कि ये स्टेटमेंट तो यूज करना ही है, आई डोंट नो हाउ बट आई हैव टू यूज इट इन एग्जाम। ये वर्ड्स कुछ वो क्या थे कि फिक्स है कि मेरे को ये करना ही है यूज, तो ओके, वो क्या हेल्प करता है। चलो ये तो हो गए चारों मॉड्यूल्स। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपने अपना स्कोर हाथ में देखा, राइट, और जब आपने देखा कि आपकी पीआर आपके हाथ में आ गई, तो वो कैसी फीलिंग थी? इट वाज अनबिलीवेबल, आई वाज काइंड ऑफ इन टीयर्स, लॉट ऑफ टीयर्स, एंड हो गया था कि भी सही में मेरा आ गया ना। मैं बस मेरा रिजल्ट देख के सही में पूछ रही कि मेरा मेरा ड्रॉ सही में मेरा ही है, मैं नाम पढ़ रही हूँ उस पे अपना, लाइक बिलीव ही नहीं होता है ना कि नेवर एक्सपेक्टेड कि इतना हो जाएगा, तो बस बिकॉज आई पीछे वाज मुड़ के। टायर्ड। हाँ, अब वो टायर्ड पीछे है। एक होता है ना कि कितना किया है तुमने, कितना कुछ देखा है, टायर्ड हो गई थी एक पॉइंट पे कि मैंने, कि मेरे को बस अब खत्म करना है, अब होना बस हो जाए। हम्म। सबकी एक्सपेक्टेशन होती है, पेरेंट्स की भी होती है कि बस करे बच्चा आगे बढ़े, सेटल होने के गोल्स थे मेरे। एक सर्टेन गोल्स को प्लान मेरे चेंज हो गए बिकॉज ऑफ दिस थिंग, कनाडा रूल्स बोलो जो भी बोलो। ये हम्म। मेरा थोड़ा डिले हो गया, टाइमिंग है ना मेरे गोल्स के अकॉर्डिंग, तो वो सबसे बिलीवेबल नहीं था बट थैंक गॉड तो फाइनली। जब आपने अपनी पीआर देखी, राइट, फिर आपने सोचा कि हाँ, मैंने जो फ्रेंच स्टार्ट करी थी आज से 5-6 महीने पहले या 4-5 महीने पहले, राइट, तो वो आपको टाइम याद आया उस टाइम के, शुक्र है मैंने वो स्टेप लिया, अगर वो स्टेप ना लेते आप तो ड्रॉ तो नहीं आता, 5-11-11 का पॉसिबल नहीं एक होता। तो हो गया था कि मेरे को और जल्दी स्टार्ट करना चाहिए था, क्योंकि अगर और करती तो फिर फ्रेंच जॉब में भी निकल जाता। आई हम्म। डिलेड इट, मैंने काफी बार डिले किया कि नहीं अब करूंगी अब करूंगी, जो नॉर्मली सबको होता है कि यार वर्क परमिट कितना महीने बाकी, अभी तो आ ही जाएगा, क्योंकि आप जनरल होप करते हो कि चलो ड्रॉ आ जाएगा। बट हम्म। मैंने डिसाइड किया अब आए ना आए ड्रॉ डजेंट मैटर, मेरे को फ्रेंच सीखना है। एनी हाउ कनाडा में हेल्प करेगा फ्रेंच, तो बट आई मैं वाज लाइक कि मैं खुश बेस्ट हुई, होगा। मैंने जब ये सुनी ना आपकी न्यूज़, तो मुझे पता है क्या लगा कि 5-11 आपका स्कोर है और 5-11 का ही ड्रॉ है। ये हाँ। एक आप कहते हो कि भगवान का ना एक वो है, चमत्कार और प्लस एक हम्म। आशीर्वाद, है ना? एक रब दी कृपा, राइट, सो व्हाट आई यूज दिस वर्ड। सो विदाउट दिस, आई मीन, आई आई डोंट थिंक सो कुछ पॉसिबल है, क्योंकि मेहनत यस। तो डेफिनेटली सारे कर रहे हैं, राइट, बट आपने करी और उतना ही स्कोर आया आपका, राइट, जितना रिक्वायर्ड था, और उतना ही कनाडा वो का, कहते हैं ना कनाडा कि की हाँ, सीएमपी का ड्रॉ मेहनत भी का उतना ही फल आया। मिलता है। इट्स हाँ। लाइक मेहनत का, जो मेहनत करता है उसको एक फल एक टाइम पे मिलता है। शायद पेशेंस थोड़ा होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए कि डेफिनेटली। मे बी थोड़ा डिले हो रहा है चीजें भगवान के, आपको लगता है कि मेरे को मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, बट इट टेक्स टाइम। बस एफर्ट करते रहते हो तो आई थिंक आई जस्ट मेड माई माइंड कि मुझे अभी कुछ नेगेटिव नहीं सोचना, बस एक ही साइड है, बहुत सेफ। एक ही डायरेक्शन है, एंड एट द एंड वही भगवान हमेशा रहते हैं आपके साथ में, हमेशा आपको वो वेरी नाइस। रिजल्ट देंगे। Okay, so is learning French and clearing TEF or TCF exam is difficult or it's easy? इट डिपेंड्स ऑनेस्टली, इट्स इजी, इट्स नॉट एट ऑल इजी, आई वुड से किसी के लिए भी इजी नहीं है, मेरे लिए खुद के लिए इजी नहीं है, मैंने फर्स्ट ट्राई में क्लियर नहीं किया है। सो इफ अगर मैं बोल रही हूँ मैंने फर्स्ट 4 मंथ्स में क्लियर किया है, नो, मैंने पहले भी एक एग्जाम ट्राई किया इन अंडर 4 मंथ्स, मैंने एग्जाम 2 बार दिया क्योंकि मुझे पता था कि मुझे एग्जाम नॉर्मल है। से, हाँ मुझे एग्जाम के लिए पहले यूज टू होना पड़ेगा कि टाइमिंग कैसे मैनेज हो रहा है। जब लास्ट बार एग्जाम दिया आई अंडरस्टूड कि भाई नहीं, मेरा टाइमिंग, मेरे को राइटिंग में बहुत मिस हो गया था मेरे को लास्ट पहली बार में। तो देन आई वाज लाइक कि नहीं, मैंने टाइम नेक्स्ट टाइम इस बार मैंने और मैनेज किया बेटर तरीके से। आई गेव कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, अगर टास्क है उसको डिवाइड करना है ठीक से, एंड वैसे मैंने अपने आप को बस इम्प्रूव किया, बट ऐसे डिपेंड करेगा हर बंदे पे। डिफिकल्ट तो कोई भी एग्जाम रहता है, बट जितना रहता है ना, हर एक का स्टडी मेथड डिफरेंट है। डेफिनेटली। बट डोंट लूज योर होप इन 1 ट्राई और 2 ट्राई, इट्स अ न्यू लैंग्वेज, कोई और बोलता है उसको मत सुनो, मुझे बहुत लोग ने बोला है क्या कर लोगे फ्रेंच करके, क्या हो जाएगा,
मत करो इतना, ये मत करो वगैरह, है ना? तो मैंने बोला भाई मेरे को करना है, काइंड ऑफ मैंने डेफिनेटली। डिसाइड किया है। आई विल ट्राई, आई विल ट्राई, अगर मैं फेल भी करती हूँ तो भी आई विल ट्राई। प्लस सो एडवांटेजेस बहुत है राइट लाइफ के। अब आप हाँ, कुछ भी बायलिंगुअल अगर आपने किसी फील्ड में जाना है तो डेफिनेटली उसके भी बहुत बेनिफिट्स हैं फ्रेंच करके। एग्जैक्टली मेरे को है कि जॉब अगर करना, मैं अभी फ्रेंच सीखना बंद नहीं करूंगी। या आई लव द लैंग्वेज एंड आई वाज इट्स लाइक नाइस। मेरे को अगर फ्यूचर में काम आप करना अभी डेल्फ है करो। या आप डेल्फ हाँ और डेल्फ का एग्जाम दो आप। ठीक है, सो दैट्स आल्सो गुड हाँ एंड इट्स वैलिड फॉर लाइफ टाइम, यस। बाकी वी विल गाइड यस। यू। ठीक है। ओके। ठीक है। और अब आप कनाडा में थे राइट, आपने अपना सारा स्केड्यूल मैनेज करा राइट। मतलब एक जो स्टूडेंट है राइट कनाडा में जो वर्किंग है, तो वो अब कैसे मैनेज कर सकता है अपना टाइम, लाइक उसको कितना कुछ करना होता है। और इट्स नॉट इजी राइट, मैं कहूँगा कि तो वो कैसे मैनेज कर सकता है स्टूडेंट। ऑफ कोर्स स्टूडेंट और वर्क लाइफ में यू कांट गिव 10 to 12 आवर्स, दैट आई अंडरस्टैंड। हम्म। और बट फिर वो भी मत सोचो कि फिर मैं 4 महीने में क्लियर कर दूंगा। वो आपको हम्म, डिफरेंस समझना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट समझना एबल टू पड़ेगा। गिव इनफ टाइम, वो 3 4 महीने में क्लियर नहीं होगा। नहीं होगा। अगर सोचो वर्क परमिट है, किसी को पता है कि मेरे वर्क परमिट में 8 महीने बाकी रह गए, फ्रेंच अभी से शुरू कर दो। हम्म। काम नहीं है ना कुछ भी लर्न करने में। उसके पहले ड्रॉ आ गया जनरली तो ठीक है, बट नहीं आया तो एटलीस्ट यू आर लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। ट्रू। और डे टू डे में अगर सोचो आफ्टर वर्क कर रहे हो, अगर एक मॉर्निंग में 15 मिनट्स कर रहे हो, 15 मिनट्स स्टडी कर लो, क्विक कोई पैराग्राफ रीड कर लो, एक ऑडियो सुन लो क्विकली, कुछ भी होता है। अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जैसे अगर यहाँ से मैं जाती हूँ जॉब में, मेरे को 1 घंटा जॉब में जाने में लग रहा है, आधा घंटा लग रहा है, कीप योर हम्म। हेडफोन्स ऑन, लिसन टू द पॉडकास्ट, थोड़ा कोशिश करो समझ रहे हो। हम्म। बहुत सारे एक्सप्लेनेटरी वीडियोस है या खुद के आपके रिकॉर्डेड क्लासेस है। मैं ट्राई करती थी, इफ आई एम गोइंग आउटसाइड आई वाज स्टिल काइंड ऑफ रीड लिसनिंग इट, कि भी क्या क्या बोल रहे हैं, क्या है, मेरे को पता है नहीं पता है। क्योंकि जितना तुम मेहनत करोगे उतना ऑफ कोर्स इट विल हेल्प इम्प्रूव। तो अगर स्टूडेंट भी हो, वर्क करो, कुछ भी हो, अभी से स्टार्ट करो। ऐसे मैं, जैसे मैंने बोला, स्केड्यूल बनाओ अपने अपने पेस के अकॉर्डिंग एवरी डे, कि मेरे को 5 घंटे देने हैं तो देने हैं, देने ही है। 4 घंटे तो देने ही हैं। हम्म। देन नेवर चेंज इट। मतलब वो देना है तो, मगर स्केड्यूल फॉलो नहीं किया तो अपने आप को पनिश करो सेकंड डे, कि भी मैंने 1 घंटा मिस किया, मैं तो यही कर देगा। अगर मैंने 2 घंटे किसी दिन मैंने सोचा मैंने मिस कर दिया, नहीं किया स्केड्यूल के अकॉर्डिंग, अदर डे लाइक मैं 2 घंटे कम सोती थी और हम्म। पढ़ाई करती थी। तो अच्छा। या या वी हैव टू मैनेज राइट, अगर हमें स्कोर यस चाहिए अच्छा तो वी नीड टू मैनेज राइट। यस True. Okay. Okay, Khushbu. So it was very nice connecting with you, right? So once again, I will say congratulations, right, for getting Canada PR with the help of learning French. ओके आपकी जर्नी बहुत अच्छी है और ट्रस्ट में आपने बहुत मेहनत करी है राइट, एंड आपने बहुत हार्ड वर्क करा है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कई बार नहीं करते राइट, और वो सोचते हैं कि हमारी किस्मत ऐसे है, बट आपने एक एग्जाम्पल सेट की है और उसमें आपने शो करा है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल राइट। एंड गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू सो मच, इट वॉज वेरी नाइस कनेक्टिंग विद यू। सेम हियर, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। एंड होप यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल अदर स्टूडेंट, जो भी बाकी लोग मेहनत कर रहे हैं, सबको ऑल द बेस्ट एंड डोंट लूज होप, आई वुड से बस। ओके थैंक यू।